सो उसने जैसे ही बोला मैं आ रहा हूँ मैं आ रही हूँ, शी इज़ लाइक मैं बस 10 मिनट में पहुँच जाऊँगी मेट्रो में एंड ऑल दैट। मैं बोला देखो 12:30 की बात हुई थी, 1:10 तक अगर ये नहीं आती देन आई लीव, क्योंकि इंसान बाय डिफ़ॉल्ट शकी है। वी ऑल हैव दैट सेम डाउट व्हेनेवर समवन टेल्स यू कि मैं घर से निकल चुका हूँ, बस पहुँच रहा हूँ 5 मिनट में, यू नो दे आर नेवर गोना बी देयर। The Funny Podcast, Bizarre and Real, Season 3. This podcast is brought to you in association with the Level Up Creators Program by Spotify India and Ideabrews Studio. Hey guys, welcome to another episode of the Funny Podcast, Bizarre and Real, an entire series that I've started off in a whim. And yeah, we are in the third season. We've done 3 episodes this time, all regarding my school life. Very stupid things that I used to do as a kid. But today, what I'm going to be talking about is a little bit different. It's going to be a little bit towards my not so adult life, or let's say my young adult life, because at that stage, I had that kind of an impact on myself, nobody else. ठीक है, मैं दुनिया नहीं बदल रहा, तो I used to do things that were stupid, even when I was supposed to be responsible. I was supposed to be, let's say, aware of my actions and consequences. But नहीं होता था वो. I couldn't do that. So this story again is something that has happened not that recently, but yeah, it happened a few years ago. And funnily enough, nobody knows this story. I mean, they know some parts of it, they know some things about it because it was a huge chunk. It was like 6 months of my life, but how it all began is what I'm going to tell you today. It's a secret. Today is the first time I'm going to talk about. And the reason why it's a secret is probably going to cover up the bizarre and real part because I was the only one affected here. So this goes back to 2016. 2016, I was in my third year of college and was kind of enjoying it because, as far as I remember, this happened when we were having our 5th semester, and during our odd semesters in the university, the odd semesters usually have that sports meet, and my university had a huge sports meet. It's like it ran for like almost 1.5 months. It's like an IPL of its own, and there were so many events. Everything is happening one after the other. So every student in the university had an escape. वो वही बोल देंगे कि हाँ ये स्पोर्ट है वो स्पोर्ट है एंड जा रहे हैं, क्लास नहीं अटेंड कर रहे. और इसी चक्कर में आई ऑल्सो फाउंड माई सेल्फ इन दैट स्पेस वेयर कुछ ना कुछ बोल के तो मैं निकल ही जाता था. एंड 2 साल थर्ड ईयर में था ये, तो पहले के 2 साल में मैंने बहुत कुछ ऐसा किया हुआ था. सो नाउ इट वॉज मोर कन्विंसिंग टू द फैकल्टी कि हाँ ये बाहर रहता है इस टाइम. सो ऐसे ही एक दिन किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्टिंग इवेंट के बाद I spoke to a friend of mine and she said कि कल मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है एंड मैं उसको विश करने जा रही हूँ गुड़गांव फ्रॉम नोएडा. मैं बोला ठीक है. तो हाँ बट हम लोग तो वी आर गोइंग टू हैव लंच. मैं बोला हाँ ठीक है बट तेरे को जाना है तो जाना, तेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है. सो शी सेड नहीं तो मैं सुबह जाके आई विल कम बैक बाय लंच. मैं बोला ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम. सो वी डिसाइडेड कि शी विल कम बैक टू नोएडा एंड देन वील गो टू लंच एट अ restaurant which I don't think I should name for certain reasons, but it was a particular cuisine restaurant and it's a huge chain throughout the country. So they follow a certain cuisine from Bombay and up they had a branch, they had an outlet in Noida, so we wanted to go there. So we decided around 12:31 ish we will meet, and this friend of mine, let's call her Ria because that's actually her name. So she said that yeah I'll meet you then. तो अगले दिन
अराउंड 12 मैं घर से निकला एंड बाय 12:30 मैं पहुंच गया. आई हैड रीच द मॉल वेयर द रेस्टोरेंट वॉज एंड आई स्टार्टेड कॉलिंग हर, टेक्सटिंग हर कि कहाँ है. शी इज़ लाइक मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ. सो वेन एवर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समवन टेल्स यू कि मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ, यू रियलाइज दैट कि वो निकला ही नहीं है गुड़गांव से या फिर वो कहीं से भी नहीं निकला है. दे जस्ट मेकिंग इट अप. तो ये तो उन्होंने बोल दिया. तो मैं आई वाज लाइक ओके, इफ शी डज नॉट कम, बिकॉज बैक देन आई यूज्ड टू गेट पिस्ड अ लॉट ऑन पीपल हु डोंट कीप देयर पंक्चुअलिटी इंटैक्ट. सो उसने जैसे ही बोला मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, शी इज लाइक मैं बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी मेट्रो में एंड ऑल दैट. मैं बोला देखो 12:30 की बात हुई थी, 1:10 तक अगर ये नहीं आती देन आई लीव. क्योंकि इंसान बाय डिफॉल्ट शक्की है. वी ऑल हैव दैट सेम डाउट वेन एवर समवन टेल्स यू कि मैं घर से निकल चुका हूँ, बस पहुंच रहा हूँ 5 मिनट में, यू नो दे आर नेवर गोना बी देयर. सो इस बात में आई वॉज वेटिंग. अब वो मॉल था तो अच्छी बात है, आई वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड द मॉल. भूख बहुत लग रही थी तो एवरी टाइम आई यूज टू क्रॉस हैग एंड एज या फिर आई यूज टू क्रॉस क्रिस्पी क्रैम. मन तो बड़ा किया था कि एक डोनट खा लेते हैं, एक स्कूप आइसक्रीम खा लेते हैं, बट नहीं. आई वॉज लाइक कि आई नीड टू प्रूव अ पॉइंट. यहाँ पे तो बात आ गई है कि हाँ अब प्रूव करेंगे कि तुम धोखा देते हो. एंड रिया इज अ पर्सन हु यू कैन टेक अ लॉट ऑफ केस विथ. तुम बात बात पे उसकी टांग खींच सकते हो और वो खिंचवाती भी है. सो हियर आई वॉज वेटिंग अराउंड टिल 12:40 12:45 एंड 12:45 मैंने फिर से कॉल किया कि भाई 10 मिनट हुए नहीं तुम्हारे. शी वॉज लाइक हाँ बस पहुंच गई हूँ, मॉल के बाहर ही हूँ. बोला ठीक है. एंड देन miraculously she wasn't lying that day. I thought कि she was lying but no, she wasn't. उसने जो बोला था वो सच था. वो मेट्रो में ही थी, वो मॉल के बाहर ही थी एंड देन शी रीच्ड. तो जब वो पहुंची तो आई वॉज आई हैड द एंटायर मोनोलॉग प्रिपेयर्ड कि यार आज तो इसको सुनाऊंगा जब ये लेट आएगी, बट अब ये टाइम पे आ गई, अब मैं करूँ क्या. एंड इट वॉज रियली बगिंग मी क्योंकि करना तो है भाई, समथिंग आई हैव टू से बिकॉज अदरवाइज हाउ डू आई prove any point, let alone the point I was planning on proving. तो इस बात पे I just gave up. Like चलो चलते हैं. We went into the restaurant, took a table for two, and started talking about things. अब मुझे केस तो लेना था, तो जो अर्ली मॉर्निंग सेलिब्रेशन वो करके आई थी मैं उस पर केस ले रहा था. एंड देन वी ऑर्डर्ड फूड. सो व्हाट हैपेंड हियर इज खाना अच्छा था, टेस्टी था. वी एट. आफ्टर पॉइंट क्योंकि मैं खाली पेट था, आई कुडंट इवन ईट अ लॉट बिकॉज देयर वाज लाइक इट वाज मैक एंड चीज़ और समथिंग, इट वाज टू हैवी. तो मैं खा नहीं पाया. बट जितना भी था खाया, अच्छा खासा टेस्टी था. ठीक है. जो एंटरटेनमेंट पर्पसेस थे मेरे रिया की टांग खींचने में वो सब खत्म हो गया क्योंकि शी केम ऑन टाइम एंड आई वाज लेफ्ट हैंगिंग. तो इतना सब खत्म हुआ एंड वी वर लाइक ओके चलते हैं. सो दैट डे काइंड ऑफ वेंट इन दैट हेज. बट मुझे टेस्ट जब अच्छा लगा था खाने का, उसने कि या ओके सेटिस्फैक्ट्री. मैं घर आया, आई स्टार्टेड फीलिंग बैड. कुछ तो अजीब सा लग रहा है. आई थॉट कि मैक एंड चीज़ में चीज़ ज़्यादा था, मे बी दैट्स वाई. सो इट जस्ट काइंड हैड दैट थिंग कि हाँ लेट जाते हैं, आई एम फीलिंग अ लिटिल नॉशिया, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, वील फील फाइन. एक वो दिन था एंड उसके बाद 5 और दिन थे जब मुझे समझ में ही नहीं आया हुआ क्या है. वो नौशिया ख़त्म हो गया उस दिन रेस्ट लेने के बाद, बट एवरी टाइम आई एट एनीथिंग आफ्टर दैट आई प्यूक्ड.
एंड मैं इतना गधा था, आई यूज टू नॉर्मलाइज दैट, मतलब मैं सोचा कि कुछ तो चल रहा है अभी जिसकी वजह से आई एम प्यूकिंग एवरी टाइम आई एम ईटिंग समथिंग। तो रोज मैं कुछ खाता था एंड देन आई न्यू कि ओके 15 मिनट्स का टाइमर है, इसके बाद आई एम गोना प्यूक। तो वो चलते रहा। डे 5 आई वॉज विद अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, मैं उसके फ्लैट पे था, हम कुछ तो हरकत कर रहे थे, वी वर प्रॉब्ली जस्ट चिलिंग और समथिंग, बट आफ्टर दैट वी ऑर्डर्ड सम पिज्जाज एंड वी एट। एंड मैंने उसको बोला कि मैं 3 स्लाइस खाऊंगा क्योंकि इसके बाद एनी वे आई एम गोना प्यूक। एंड ही वॉज लुकिंग एट मी, इसलिए क्या है ये कौन सा लॉजिक है। सो अब इसके बाद तो आई जस्ट न्यू कि ऐसा होना है, तो मैंने 3 स्लाइस खाए, टाइमर चालू हो गया। 15 मिनट्स, 14th मिनट में मैं खुद ही खड़ा हुआ, इसलिए क्या हो गया, मैं बोला कि 15 मिनट होने को आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ उल्टी करने। तो इसलिए आरंट यू ट्राइंग टू डू दिस, लाइक आर यू डेलिबरेटली ट्राइंग टू वॉमिट। बोला भाई देख, डेलिबरेट नहीं है अभी तक, बट अगर 15 मिनट के बाद अब उल्टी नहीं होती तो अजीब सा लगेगा कि रूटीन बिगड़ गया। सो दैट हैपेंड एंड देन आई वेंट, आई प्यूक्ड अगेन। एंड 5वें दिन पे इट वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज उसके बाद मैं वापस आया, लाइक कि हो गई उल्टी, एंड देन आई जस्ट स्लेप्ट, आई डोज्ड ऑफ। उसके बाद मेरी तबीयत खराब होने लग गया, आई स्टार्टेड गेटिंग अ वेरी हाई फीवर एंड वो सब कुछ चले जा रहा है। सो द होल डे, द एंटायर इवनिंग माई फ्रेंड हैड टू टेक केयर ऑफ मी, क्योंकि मेरे को बुखार हो गया है, आई कांट इवन, लाइक आई फेल्ट डिहाइड्रेटेड बिकॉज कुछ टिक नहीं रहा बॉडी में। एंड amidst all of that, it just kind of, you know, the entire night kind of went past. तो अगले दिन सुबह हुई, हमारी क्लासेस थी, तो आई डिसाइडेड कि मैं क्लास में सुबह नहीं जाऊंगा क्योंकि आई एम वेरी सिक। सो माई आस्क्ड माई फ्रेंड टू जस्ट ड्रॉप मी ऑफ एट माई प्लेस एंड गो टू द कॉलेज। तो उसने मुझे ड्रॉप किया, मैं किसी तरह से घर पहुंचा, फिर से आई डोज्ड ऑफ बिकॉज आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, क्योंकि मैं कुछ भी खा रहा हूँ वो टिक तो रहा नहीं है बॉडी में, एनर्जी है नहीं। तो शाम को मैंने डिसाइड किया कि यार अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अब तो क्लास क्लास भी ज़्यादा मिस हो रही है, लेट्स जस्ट गो टू द डॉक्टर। नाउ आई वेंट टू द डॉक्टर, टर्न्ड आउट उस रेस्टोरेंट में मैंने जो खाना खाया था, इट डिड नॉट गिव मी एनी काइंड ऑफ बग, इट डिड नॉट गिव मी फूड पॉइजनिंग, somehow I got jaundice from it. डॉक्टर ने मुझे देखा, इसलिए कि जॉन्डिस है, एडमिट होना पड़ेगा। एंड दिस इज द सीक्रेट आई बीन कीपिंग कि everyone knew that I had jaundice, and this jaundice thing, this entire thing went on for like 6 months. मेरा कॉलेज मिस हुआ, एग्जाम्स में मैंने बस लिखा है कुछ, आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाट। माय पेरेंट्स हैड टू शिफ्ट टू नोएडा सो दैट दे कैन take care of me. Everything happened that way. So that happened and that made a lot of change, but nobody knew. The only person who had known कि jaundice हुआ कैसे was me. And 2016 से 23 7 साल होने को आ गए, and I was keeping the secret to myself. So that's what I wanted to share today. And इसके बाद क्या हुआ is again another story. So what I'm gonna do is I'm gonna cut it off today here. A second part of it will follow in the next episode, where I'll talk about the immediate action plan of me finding out jaundice. So that will be for the next episode, but I think we are at a good point to pick it up from next week. Till then, once again I'm gonna be talking about another podcast from the Level Up program by Ideabrews Studios and Spotify India. The podcast that I'm going to talk about today is called Eat Smart with Avanti. Avanti Deshpande is one of the country's top nutritionists, and she has created this entire podcast to talk about keeping diet simple, something that is easy to follow, uh, focusing on creating nutrition for yourself in a very simple, easy, and relatable way. The link of the podcast is on my bio. You can check it out right now. And yeah, if you like this podcast, do follow me on Instagram. Links are all there.
I'll see you next week. Thank you so much for listening. Take care and bye bye.